Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1 syllabus. In the last lecture we have discussed about the epsilon delta definition of a limit, which is given like this, that if modulus of fx minus L less than epsilon whenever x minus a less than delta, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि anything less than delta is nothing but 0, means x minus a is equal to 0, then you will get x equal to a. Similarly, anything less than epsilon will be 0. Anything less than epsilon will be 0. fx minus L is less than epsilon, so it should be 0. मतलब fx minus L को आप 0 करेंगे, then you will get fx equal to L. Now, मैंने last time आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था that how to prove that the limit of this function fx equal to 3x plus 4 is 10 by using epsilon and delta definition at x equal to 2, right? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपली आपको डेफिनेशन को वेरीफाई करना है. कौन सी डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन, दैट मॉडुलस ऑफ fx minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta. तो अगर ये वेरीफाई हो गई तो फिर सभी क्वेश्चन की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी. तो इसको आपको लिखने का तरीका मैं सिखा देता हूं एक सवाल में, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज होते हैं. तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो. नाउ गिवन दैट the function fx is equal to, which is written as 3x plus 4, and you have to show that its limit L is equal to 10 at x is equal to 2, x की वैल्यू 2 पर. Then you have to write by the definition of epsilon delta definition of limit. क्या है हमारे पास ये डेफिनेशन? वी हैव मॉडुलस ऑफ fx माइनस एल, मॉडुलस ऑफ fx माइनस एल. एल क्यों लिखते हैं? एल जस्ट फॉर टू रिप्रेजेंट द लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन. इट इंप्लाइज दैट you have to write the value of function 3x plus 4 like this and minus L. L is 10 less than epsilon. तो आपको इस तरह से फंक्शन की स्टार्ट करनी है and by step simplification you have to reach at x minus a less than delta. आपको क्या दिखाना है? ये आपका टू शो होना चाहिए यहाँ पर, टू शो मॉडुलस ऑफ x minus 2 लेस देन डेल्टा. अगर आपने दिखा दिया तो वेरीफाई हो जाएगा. तो क्या करेंगे सर? देखो ऐसे, वी विल सॉल्व दैट 3x plus 4 minus 10. So can it be written like this, 3x minus 6 less than epsilon, and then you can take common 3 from this bracket, or you can say the modulus. So 3 into x minus 2 less than epsilon. After that, this 3 can be taken in the division of epsilon like this, x minus 2 is less than epsilon by 2. अब जैसे ही आपको दिख जाए कि ऐसा हो चुका है कि x minus a जैसा बन गया, x minus 2, then you have to say the right hand quantity, this right hand quantity जो भी राइट में लिखी है, इसको आपको तुरंत क्या कह देना है? इसको आपको डेल्टा बोल देना है. डेल्टा से अपनी तरफ से आप इसे डेल्टा कह देंगे. जैसे ही आपको अपना टारगेट x minus a, x minus 2 यहां पर दिखाई दे, जो भी क्वांटिटी राइट साइड पर होगी उसे आपको डेल्टा कहना है. दिस इज द प्रोसीजर. एंड देन ऐसे लिख देंगे क्या कि मॉडुलस x minus 2 इज लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, सॉरी 3 था ना, 3 है. 3, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, नॉट 2, है ना? 3 है, यस, दिस इज 3. सो दिस वैल्यू एग्जिस्ट. नाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. क्या लिखेंगे आप? thus modulus of fx minus fa, or you will say L in case of limit, is less than epsilon whenever yes, whenever
x minus a less than delta is delta for all epsilon delta greater than 0 is verified, ऐसे लिखेंगे आप। ये डेफिनेशन जो है ना ये वेरीफाई हो चुकी है, इज वेरीफाइड, हेंस अब आपको ये लिमिट कहनी है कि एग्जिस्ट करती है, हेंस यू विल से द लिमिट x टेंस टू क्या था 2, x टेंस टू 2 ऑफ fx इज इक्वल टू 10 लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे, x दैट इज एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट, हाँ जी, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट। So this is the total working rule to solve, to simplify, to prove that any function f will have the limit L। इस तरह से आपको इसमें प्रूव करना है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि गिवन फंक्शन को लिखना, गिवन फंक्शन, उसकी लिमिट लिखना और x इक्वल टू जिस वैल्यू a पर हमें प्रूव करना है। नाउ बाय द डेफिनेशन epsilon delta definition you have to start from this terminology modulus of fx minus L less than epsilon। यहां से आप स्टार्ट करेंगे सर, फंक्शन ऑफ x और L इन्हें जैसे भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपको यहां तक पहुंचना है x minus a less than delta तक। एंड आफ्टर दैट दिस ग्रीन लाइन modulus of fx minus L less than epsilon whenever x minus a less than delta for all epsilon delta greater than 0। this is nothing but the definition of एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना। तो लिमिट के लिए आपको ये थोड़ा सा काम इस तरह से करना है। लास्ट में लिख देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर ये सामने जो दिया है L इक्वल टू 10 सही है, क्योंकि अगर यहाँ 10 नहीं होता तो 4 माइनस 10 6 नहीं होता, 3 कॉमन नहीं होता और ये x माइनस a नहीं बनता। तो 10 की ही बदौलत ये सब हो पाया, इट मीन्स 10 इज द आंसर। इस तरह से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्या आपको समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं, जरा उनको एक बार देख लीजिए ताकि आपका टाइम कम लगे समझने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फंक्शन क्या गिवन है, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट शो दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 हैज लिमिट 6 एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा, L लिमिट और x इक्वल टू a इक्वल टू 3 हो गया। बाय द epsilon delta definition of limit we start from this line fx minus L less than epsilon। क्लियर है यहां से? this is the value of fx function minus 6 less than epsilon। इसको फैक्टराइज करो और देखो यहां से जैसे आप इसे फैक्टराइज करेंगे ना सर, तो x माइनस 3 x प्लस 3 से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट x प्लस 3 बचेगा और उसके बाद माइनस 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियरली ये x माइनस 3 बन रहा है। आपका टारगेट यहां से टू शो में साफ साफ होना चाहिए that we have to show x minus 3 less than delta। तो x minus 3 बन चुका है ना। अभी एप्सिलॉन जैसे आ जाए x minus a x minus 3 बन जाए, इसको तुरंत डेल्टा कहना है, देन वी से इट एप्सिलॉन को डेल्टा, और फिर उसके बाद ये लाइन लिख देंगे कि x minus 3 less than delta, बिकॉज हमने इंडिपेंडेंट की दुनिया में उसे डेल्टा बोला है, डिपेंडेंट की दुनिया में एप्सिलॉन बोला है। तभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, एप्सिलॉन वाले से, डिपेंडेंट से, और कहां तक लेके जाना है उसको, इंडिपेंडेंट x तक। तो जैसे वो इंडिपेंडेंट बने तो एप्सिलॉन को डेल्टा बोलना है। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन की लाइन fx minus L less than epsilon whenever x minus L less than delta is verified, so limit x tends to 3 f of x is equal to 6, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल था ना। देखो फंक्शन की वैल्यू रखो, लिमिट रखो, सिंप्लीफाई करो एंड ट्राई टू रीच एट दिस पॉइंट। जैसे x minus 3 बन जाए तुरंत एप्सिलॉन को डेल्टा बोलना है। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन यू हैव टू शो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एक और बात, जब क्वेश्चन में लिखा होगा ना ये मेथड है एप्सिलॉन डेल्टा, तभी आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज यू कैन फाइंड RHL LHL, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये इसकी लिमिट होगी, ये x इक्वल टू a हो गया, ये लिखा हमने फंक्शन L और x इक्वल टू a इक्वल टू 1। स्टार्ट करेंगे फिर से वहीं से, fx minus L less than epsilon, this is the value of fx, this is L 3/2, and again you have to factorize the numerator as x minus 1 x square plus x plus 1, और यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इस फॉर्मूले से आपको ये न्यूमरेटर में लगा देना, और नीचे तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। Again you can see here this x minus 1 cancel, and after simplification of this numerator denominator with the minus 3/2 you will find such type of arrangement that, यहाँ ध्यान से देखो, that you will get 2x square minus x minus 1 upon 2 into x plus 1, क्योंकि इसका आप एलसीएम लेंगे ना यहाँ पर, तो ये 2 भी आ जाएगा इसके साथ। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, मेन टारगेट क्या है, ये टू शो, यहां टू शो पर मेन टारगेट रखना है, दिस इज टू शो x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, ऐसे पहुंचना है आपको कैसे भी करके। तो देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड फैक्टराइज करेंगे तो आपको इसमें एक बात पर ध्यान देना है, कौन सी बात पर, ये x माइनस 1, दिस इज आवर मेन टारगेट, x माइनस 1। देन यू हैव टू टेक x माइनस 1 सेपरेट आउट ऑफ दिस मॉड्यूलस, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी को अलग कर देना है, ये अलग मॉडुलस है और ये x माइनस 1 अलग चल रहा है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, आपको सिर्फ x माइनस 1 चाहिए, तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, उस टारगेट के अलावा जो भी है, x माइनस a के अलावा जो भी है, आपको उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। मैं समझाऊंगा अभी, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे, बट आपको उसको 1 से रिप्लेस करके रिमूव कर देना है। सो टोटल दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओनली। क्या कहेंगे हम इसको, कि ये ना, ये क्वांटिटी ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फिर आप यहां पर ऐसे सिंबल यूज कर देते हैं कि इट इंप्लाइज टू लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1, दिस क्वांटिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय लेस देन इक्वल टू 1। आई विल टेल यू दैट हाउ इट इज लेस देन इक्वल टू 1। सो 1 मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको अपना टारगेट दिख गया और तुरंत एप्सिलॉन को डेल्टा कहना है, x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन है। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन पूरी लिख दी कि x माइनस a लेस देन डेल्टा तक पहुंच गए हम, डेफिनेशन वेरीफाई होगी और ये इसका आंसर 3/2 बनेगा। अब मैं ये बात समझाता हूं आपको कि ये अलग से जो हमने इसको रिमूव कर दिया, ये क्या है। देखो क्या लिखा है, 2x प्लस 1 और 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1। नाउ सी हियर, देखो हम देखते हैं x इज इक्वल टू x है, फिर हम देखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 2x है ऐसे, फिर हम देखेंगे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर हम 2x प्लस 1 और इधर भी ये 2x प्लस 1 है, ये वाला, और इसमें मैं आपसे कहूं कि भाई प्लस 1 और कर दो, तो अब बताओ एक्स्ट्रा इधर जुड़ा है ना, कौन सी क्वांटिटी, अभी तक इक्वल थे तो ये बड़ी होगी ना, तो दिस विल बी ग्रेटर देन, ऐसे ये ग्रेटर देन हो जाएगी। और फाइनली यू कैन सी हियर 2x प्लस 1 लेस देन 2x प्लस 2, और यहां से 2 कॉमन लो, तो 2x प्लस 1 लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 1 लाइक दिस, और फिर ये पूरा इसके अपॉन पर, तो 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 इन द ब्रैकेट एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वाली कंडीशन हमने वहां पर यूज की है, ठीक है। आपको कहीं किसी को नहीं बताना, ये बस मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन करके समझा रहा हूं कैसे होता है। यू हैव टू जस्ट रिप्लेस द अदर थिंग्स अदर देन x माइनस ए, जो इसके अलावा जो भी होगा आप उसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व, टू एनालाइज दैट दिस डेफिनेशन इज वेरीफाइड बाय पर्टिकुलर टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। यानी इसमें ये वाली चीज को छोड़कर ये वाला x माइनस ए इसका डेफिनेशन वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं एग्जाम में, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं जरूरत नहीं है, एग्जाम में मत दिखाइएगा इसको, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो समझ में आ गया, काम शुरू करेंगे fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन से, और चलते चलते fx इक्वल टू x माइनस एल लेस देन इक्वल टू डेल्टा तक पहुंचना है। तो 3 इक्वेशन कंप्लीटेड। एक और सवाल देखो भाई, ये अच्छा लगेगा आपको। fx इक्वल टू cos x, लिमिट वी हैव टू शो द आंसर cos a एट x इक्वल टू a। क्या करना है सर, यहीं से शुरू करेंगे। fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, fx की वैल्यू cos x, l की वैल्यू cos a। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला cos c माइनस cos d, which is minus 2 sin d c plus d by 2 and d minus c by 2, ऐसा कुछ होता था, लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो c माइनस डी होता है, c माइनस डी। अब इसमें भी फिर से ध्यान देना है, यू हैव टू सी योर टारगेट इज टू शो
however x minus a less than delta. कैसे भी आपको ये लेके आना है. Now try to understand in this whole expression x minus a यहाँ आ रहा है, तो बस उस पर ध्यान देना है. बाकी सब चीजें वन बाय वन रिमूव करेंगे. -2 मॉडुलस सेपरेट, साइन मॉडुलस सेपरेट, इसका साइन x माइनस है, ये भी सेपरेट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया. साइन, एनी साइन, साइन जो x प्लस है वो हमारे काम का नहीं है, x माइनस है वो हमारे काम का है. सो साइन x प्लस a बाई 2, साइन x प्लस a बाई 2, एनीथिंग विच इज साइन थीटा, उसका रेंज -1 से 1 होता है. मॉडुलस लगाएंगे तो 1 से छोटा होगा, तो हमने इसको रिप्लेस कर देना है 1 से. देखो सेपरेट हो गए. उसके बाद साइन लेस देन इक्वल टू, आप चाहें तो यहां पर भी लेस देन इक्वल टू बनाकर लिख सकते हैं ऐसे, दैट इट विल बी जस्ट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ऐसे कि इट इंप्लाइज दैट इट विल बी लेस देन इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट इट विल बी लेस देन इक्वल टू, लाइक दिस. नाउ सी हियर, साइन इसको लेस देन इक्वल टू 1 से रिप्लेस करना है. अगेन ये जो साइन है, फिर से देखो एक और प्रॉपर्टी, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा. हमें यहां इसमें पूरे वाले साइन को गायब कर दिया, लेकिन इसमें नहीं किया. क्यों? क्योंकि आपको x माइनस ए चाहिए. बस इस बात पर ध्यान देना है. तो टू कंप्लीट द डेफिनेशन, टू कंप्लीट x माइनस ए लेस देन डेल्टा, वी हैव टू एनालाइज दैट हाउ वी विल फाइंड x माइनस ए. तो प्रॉपर्टी की हेल्प से वो चीज लेके आओ, ऐसी जबरदस्ती नहीं लिखे जा रहे हैं. दीज हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज कि साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा. तो कहां आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अकॉर्डिंग टू दैट. सो टू साइन, इसको पूरे को गायब कर दिया लेस देन 1, और यहाँ साइन को रिमूव किया ओनली विद द प्रॉपर्टी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा. सो वी आर अप्लाइंग दीज टू प्रॉपर्टीज हियर. उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, और देखो x माइनस ए बनता नजर आएगा आपको, राइट. सो यू कैन सी हियर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू थीटा. सो इसको फिर हम डेल्टा की लैंग्वेज में लिख देंगे, और फिर ये प्रॉपर्टी इसकी fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा. तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ सही बात है कि cos x का आंसर cos a होगा. तो देखो ये कितना अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की कि कहाँ हमें पूरे साइन को गायब करना है x प्लस a की वजह से, पूरा हटा दो, हमारे किसी काम का नहीं. ऐसी x माइनस ए बाई 2, जैसे कि वो जो x वाला क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने सिखाया आपको, ये वाला, ये कि इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको रिमूव करना है, तो 1 से रिप्लेस कर दो इसको, एंड द रिमेनिंग थिंग्स विल बिकम x माइनस a लेस देन डेल्टा. सिमिलरली हियर दिस साइन x प्लस a बाई 2 इज एक्स्ट्रा थिंग्स, तो रिप्लेस करो इसको विद द हेल्प ऑफ 1. समझ में आया? तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a cos x इक्वल टू cos a. ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, बिकॉज द टोटल सिनेरियो इज टू वेरीफाई दिस लाइन. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लिमिट. ठीक है, बात समझ में आ गई? एक और छोटा सा सवाल देखो. दिस इज fx इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x. ये 5 क्वेश्चन है, देखो. ठीक है, अब तक के जो 2 लेक्चर्स हमने, एक इंट्रोडक्शन और एक लिमिट का किया, वो उसका क्रक्स है, तो ये आप समझ लो. fx इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x, लिमिट l इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू शो दैट द लिमिट ऑफ x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0. सो अगेन इस लिमिट से शुरू किया, डेफिनेशन से, x साइन 1 अपॉन x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन. ये फंक्शन माइनस 0 करेंगे, सेम रहेगा. नाउ टू शो कैसे भी करके आपको x माइनस 0 लेस देन डेल्टा लेके आना है, ये है बस मेन चीज. तो देखो ध्यान से, इस पूरे फंक्शन में ये जो x है ना सर, और ये साइन 1 अपॉन x है, तो इन्हें सेपरेट कर दो. नाउ यहां x से अकेला x माइनस a बनाया जा सकता है, x माइनस 0, तो साइन एक्स्ट्रा हुआ ना. सो वी विल से दैट साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1. तो यहां पर ये लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे चल जाएगा. इसको क्या बनाएंगे, x माइनस a मतलब x माइनस 0 है ना, x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, एंड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी राइट इट एज डेल्टा. तो नेक्स्ट लाइन में देखो हमने इसी तरीके से लिखा है कि x माइनस 0 लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड देन दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट fx minus l less than epsilon whenever x minus l less than delta. So this is the basic total scenario in which you will find you will verify the definition of limit. फिर उसके बाद ये लिख देना है कि इसका आंसर 0 ही है. अगर यहाँ 0 नहीं होता मीन्स यहाँ पर, तो ये ऐसा नहीं होता, फिर हम साइन को रिमूव नहीं कर पाते. मान लो 1 होता है यहाँ, तो फिर कैसे अलग करते आप इसको, है ना. तो इसकी हेल्प से हमने ये वाले क्वेश्चन प्रूव कर दिए.
अलॉन्ग विद दैट देयर इज एन असाइनमेंट और 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाए हैं, 5 ये हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लो। इन क्वेश्चंस को भी आप ऐसे ही प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा आप बना देंगे, ठीक है सर। तो ये था हमारा आज तक का कार्यक्रम। जितने भी पीडीएफ्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स हैं, वो सब हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं आपको, है ना। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसी पर सारी पीडीएफ्स शेयर की जाती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।